संगत नहीं करते, सत संगत विच बोलते नहीं, गुरु घर दे विच आके बाणी पढ़ते नहीं, पढ़ाउंदे नहीं, उन्हां दे प्रति बाणी क्यों दसदी है। प्यारे जे मुख हो गया गूंगा, दस फिर किवें गुण गाएगा। जे मुख हो गया गूंगा, दस फिर किवें गुण गाएगा। जे मुख हो गया गूंगा, सत फिर किवें गुण गाएगा। जे मुख हो गया गूंगा, सत फिर किवें गुण गाएगा। जे मुख हो गया गूंगा, वाहिगुरु 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 अगला समा बड़े प्यार सत्कार दे नाल महापुरखों की पावन पवित्र रचना तो सरवण करिए। बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा। ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना, सार ज्ञान तेरी। सब ते बड़ा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी। मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट पराती तरया रे। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, सिर फिर गुरबास न परया रे। प्रभु सब की तेरा जी, मैं किश नहीं, मैं किश नहीं। सभी तेरा जी, मैं किश नहीं, मैं किश नहीं। सब किश तेरा जी, मैं किश नहीं, मैं किश नहीं। सब किश तेरा जी, मैं किश नहीं, मैं किश नहीं। तेरा जी, मैं
कबीर मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लगे मेरा। सब की तेरा जी मैं किछ नहीं, मैं किछ नहीं, तेरा जी मैं किछ नहीं, मैं गुरु बाबा जी थी पावन पवित्र उच्ची सच्ची निगी गोदानंद मान रही। गुरु रूप गुरु सारी साध संगत जीओ, जिथे आप जी दूर नेड़ियों गुरु चरणों में पुज के अपनी जिंदगी दी अमूलक घड़ियां गुरु चरणों में लगा के सफलियां करने की खिचला जानी कृपालता कर रहा। उत्थे गुरु घर विच पुज के गुरु नानक पातशाह जी का जो असी 550 साल प्रकाश दिवस मना रहे हैं,
ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਮੋਲਕ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਫਲਿਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖੇਚਲਾ ਜਾਨੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਛੇੜੂ ਬਣਾਇਆ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਹੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਬਣਾਇਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੋਇਸ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਰਾਏ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਸਨ ਕਿ ਨਾਨਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਗਏ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਹੀ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਸੁਖਸਾਨ ਪੁੱਛੀ, ਬੇਟਾ ਰਾਜੀ ਹੋ? ਪਰਿਵਾਰ ਠੀਕ ਹੈ? ਉਪਰੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਹਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਠੀਕ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਰਾਏ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਟਾ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਤੇਰਾ ਵੀਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇਰਾ ਵੀਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਵੀ ਕੰਮ 'ਚ ਲਾਇਆ ਉਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਜਨ ਚੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਨਾਨਕ ਕੁਛ ਕਰੇ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਰਾਏ ਕਾਲੂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਅੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਅੱਖ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਦੇ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਆਖਿਆ, ਬੇਟੀ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੀ ਤੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਇੱਥੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਦੀ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਨਵਾਬ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਵਾ ਦੇਂਗੀ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਲਵਾ ਦੇਂਗੀ। ਖੈਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ। ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਪੁੱਜੀ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨਾਲ, ਵਕਤ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਬਣਦੀ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲਵਾ ਦਿਓ। ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਾਨਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਵਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਨਵਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾਨਕ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨਵਾਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੀ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੌਖੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਸਟੋਰ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਟੋਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਥੋਕ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਉਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਭ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੱਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਖੈਰ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਨਵਾਬ ਦੇ ਹੱਟ ਤੇ ਪੁੱਜੇ, ਉਸ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਟੋਰ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵੱਟੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪਏ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸੌਦਾ ਤੋਲਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਨਵਾਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਨਵਾਬ ਖਾਨ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਭ ਦਾ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸੱਚਾ ਰਹੇਗਾ। ਖੈਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, 2 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਨਵਾਬ ਦੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ
सत्संग सौदा दी जाते हैं, जो भी मंगता है उन देंदे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 गिनती करते करते 13 ते आके फिर 1 तो शुरू कर देंदे हैं। माफ करना गुरु की संगत चाहे पैसे भी थोड़े दिंदा, कोई ज्यादा दिंदा, फिर तो कई कहते भी सौदा बड़ा सस्ता मिलता, कोई साढ़े कोल पैसे होंगे चार ते असी भी कुछ ना कुछ खरीद लेंगे। बाबा जी कहते हैं माफ करना कि तुसी बई जिन्हों सौदा चाहिए, गुरु नानक जी कहते लै जाओ, कोई गल नहीं, पैसे की किहड़ी गल है, माफ करना होणगे दे दिओ, नहीं ते ना सी। वो किते छोटे होंदे पढ़दे होंदे एक बारी सतगुरु नानक हट्टी पाई सी, 13 करके लुट मचाई सी, भर झोड़ियां लोकी घर नूं जांदे ने। सतगुरु नानक मुखों पर फरमाते हैं सत्संग जी सौदा लैन वाले दी लैना लगी हुई ने, कोई 20 किलो, कोई 50 किलो, कोई जिन्ना भी वो चक सकता सी, बाबा जी उन्होंने पाई जाते हैं। खैर एक दिन गुजरिया, दूजे दिन दुनिया के विच सत्संग जी सारिया बीमारियों का इलाज है, कोई निंदक का इलाज कोई नहीं है। बाणी दसदी है सभे निंदक औखद माफ करना, सभे औखण कीतियां निंदक का दारू ना है। सारिया बीमारियों के इलाज हो जाते हैं, पर एक निंदक का कोई भी दारू इलाज बीमारी का, निंदा की बीमारी का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। होर सारिया दुखा दे दारू निंदका दा कोई ना मिले, सारिया दुखा दा दारू निंदका दा कोई ना मिले, सारिया दुखा दा दारू निंदका दा कोई ना मिले, सारिया दुखा करते हम कहते हम भाईया जयराम दा साड़ा नानक जो कि मंगता उन्होंने लुटाई लगा जाता है। एक गल नवाब दे कोल पहुंची, माफ करना गुरु की संगत नवाब नूं आख्या, नवाब साहब ओ भाईए जयराम दा साड़ा जो मोदी खाने दे विच तू रखिया होया तो तेनों जाड़ के छड्डूगा, ओदा जे भी पैसे दिंदा तद भी उस पदार्थ दई जांदा, नहीं दिंदा तद भी सौदा दई जांदा, और 13 तो अगे नहीं जाता। 13 करके उन्हें लुट मचा के रखी हुई है। खैर नवाब साध संगत जी अज मोदी खाने का नवाब मोदी खाने के उत्ते पुजया, गुरु नानक साहब जी सौदा दे रहे सन 13 माफ करना गुरु की संगत, उन्हें वेख के सरबड़ के कोड़ा हो गया। कोई पैसे दिंदा तद भी 13 नहीं दिंदा तद भी 13 थोड़े पैसे तद भी 13 माफ करना गुरु की संगत जी, जो पैसे नहीं भी लेके आंदा तद ही 13 बाबा जी पढ़ते हम सब कुछ तेरा, मैं कुछ नहीं, तेरा ही। मोदी खाने के नवाब ने गुरु नानक जी को कंधे तो फड़ के
आगे तेरा क्यों, क्यों तेरा, तेरा क्यों, मेरा मेरा, ये सब कुछ मेरा है, तेरे विच किसी का की है। गुरु नानक जी कहते नवाब साहब सब परमेश्वर का ही है, तेरा तो हीला वसीला सब परमेश्वर का ही दिता हुआ। खैर गुरु की संगत उन्हें गुस्से च आके स्टोर नूं उस मोदी खाने नूं उन्हें लॉक लवाता, जा गल करांगे तेरा हिसाब किताब कीता जाएगा पहला। इधरों गुरु की संगत माफ करना, गुरु नानक जी बाले नूं ना लेके वही नदी उसके कंढे ते रोज इशनान करने वास्ते जाते सन। इधर माफ करना गुरु की संगत जो हिसाब किताब किया गया उथे अजे भी लिख के लाया कि गुरु नानक पातशाह का 750 रुपया बचत निकली। वो मोदी खाने का जो नवाब सी, माफ करना वो भाई जयराम कहता, मैंने तो लोग कहता सी कि नानक ने तो लुट मचाती पर मेरा तो 750 रुपया वादा निकल गया, नानक कितने है। माफ करना गुरु की संगत मैं उनको भी जी सदके मेरे स्टोर के उत्ते काम करे, तदे रोज कहने खावा खर्चा रंग पाई तोड़ना आवे वध जाई। तब माफ करना गुरु की संगत उस मौके गुरु नानक जी नूं भाई जयराम ने आख्या कि लोगों का एवं तुहाडा प्रोपोगंडा कर दिता सी। नवाब कहता कि हुण भी आके नौकरी कर लो, कोई ऐसी गल नहीं है। गुरु बाबा जी ने आख्या अपने भाई जयराम नूं, आख्या भाईया जी हुण तां असीं निरंकार की चाकरी करांगे, एक बारी क्या दे बैठ किसी की नौकरी नहीं करनी, चाकरी करांगे। बाले नूं ना लेके मां रोज अमृत वेले वहीं ते इशनान करने वास्ते जाते सन। जिथे रही है बड़ा डूंगा पानी, उत्थे अज भी सत्संग जी। पिछले दिनी जदों असीं उत्थे लंगर लाया होया सी, माफ करना गुरु की संगत फरीचे वाले संतां दे 2 सेवक उत्थे माफ करना सफाई करते डुब गए, रब नूं प्यारे हो गए। तो माफ करना दूजे दिन गुरु नानक जी ते बाला का इशनान करके बाहर निकलिया, पर जो गुरु नानक जी ने माफ करना गुरु की संगत टोपी लाई इशनान करते समय गुरु नानक पातशाह कितने चले गए, निरंकार के देश में चले गए, सचखंड वसे निरंकार। माफ करना गुरु की उस टुब्बी दे विच माफ करना वहीं दे विच टुब्बी लाई। दूजे दिन इधर भाई बाला इंतजार करते करते सूरज निकलिया, चेहरा तो रंग उड्या होया, बेबे नानकी पास पुज्या, बेबे जी तुहाडा वीर नानक वहीं दे विच डुब गया, मिलिया नहीं, वापस नहीं आया, ओदा डुब के लगता भी मर गया। बेबे नानकी जिसनों पूर्ण यकीन सी कि मेरा वीर आम वीरा वर्गा वीर नहीं है, पूरा विश्वासी ये निरंकार है, ये परमेश्वर है, ये रब है, ये वहरू है, खुदा है, अल्लाह है, राम है, सुख है, जो कुछ भी है वो मेरा वीर है, इस तो परे कुछ नहीं। आख्या वाले तो घबरा ना कि मेरा वीर डुब नहीं सकता, मेरा वीर तो डुबे हूं तारन वास्ते आया है। ख्याल गुरु की संगत इधर लोग आपसी गल्लां करते, वो नानकी का एक वीर से वही डुब के मर गया। कहते कुछ कहता कोई कैसे कहता, लोग कहते डुबना ही सीगा, निंदक लोग कहते डुबना ही सीगा। माफ करना गुरु की संगत डुबना ही थी, और की करना सी। जदों हिसाब किताब देना पिया तो पता सी भी घाटा निकलना है मोदी खाने च, डुबना ही थी। उस मौके गुरु की संगत जिन्हें मुंह ओनियां गल्लां, कई कहते सिर च पानी पै गया होना, डुब गया होना, पर माफ करना अज बाला भी सवेरे शामी उत्ते जांदा भी गुरु नानक साहब किते नजर आउण, किते मिलन। तीसरा दिन आ गया, जदों तीसरा दिन आ गया गुरु बाबा जी 2 दिन उस रही दे पानी विच निरंकार दे देश में चले गए रहे। अज बाला जी जदों अमृत वेले इशनान करके वही ते टहल दिन पैर गुरु नानक पातशाह जी मई दे विचों बाहर आए।
ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੇਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ, ਲਹਿਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਗੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਨਾਨਕ ਤੈਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਦੇ ਤੂੰ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਵਾਗੀ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਤੂੰ ਹੱਟੀ ਪਾ ਲੈਣਾ ਨਾਨਕ, ਕਦੇ ਤੂੰ ਚਿੜੀਆਂ ਡਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਉਜੜੀਆਂ ਖੇਤੀਆਂ ਉਜਾੜ ਕੇ ਹਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਥੋੜਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਆਖਿਆ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਫ ਕਰਾਂ ਜਿੱਤ ਦਾ ਲੱਖ ਮੁਹੰਮਦਾਂ, ਲੱਖ ਬਰਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼, ਜਿੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਰਮਾ ਵਰਗੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਰਸਾ ਵਰਗੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਟਹਿਲ ਕਰ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਮੁਖ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਅੱਜ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੇਰੀ ਦੇਵ ਲੱਖਾਂ ਦੇਵਤੇ। ऐसा कोई दरगाह का नक्शा बनिया होया है। गुरु बाबे बाबा जी ने जाके नमस्कार की, निरंकार नूं कई लोग कहते गुरु नानक का गुरु केड़ा है। एक बारी कह दे वैरू, इन्हां कमले लोगों नूं की पता है गुरु नानक का गुरु तां निरंकार ही है। उस मौके जो परमेश्वर ने कहा कि तू मझां दा छेड़ू बन जाना, बाली बन जाना, किते तू हट्टियां पा लेना, किते तू उजड़ियां फसलां उजाड़ के हरियां भरियां कर देना, किते पांडे नूं पढ़ाउण तुर पैना। आख्या तैनूं जिहड़े कमली भेजिया तू वो कम नहीं शुरू किया। गुरु जी ने दोवें हत्थ जोड़ के बेनती की, हे गरीब नवाज परमेश्वर मूहरे बेनती की बड़ी अधीनगी दे नाल नम्रता दे घर विच आके, हे प्रभु पहले समय दे विच माफ करना गुरु की संगत जितने भी बड़े बड़े पीर पैगंबर हुए ने, राम वर्गियां दे, कृष्ण वर्गियां दे, माफ करना इन्हां दे गुरु हुए हैं और नकुरे बंदे नूं उपदेश देने दा हक नहीं है। कृपा करके आप मेरे गुरु बन के, गुरु हो के मैनू माफ करना गुरु की संगत उपदेश दिवो, मैं जिहदी राही संसार दा भला करा। वो माफ करना गुरु की संग संसार दा उदार करान, संसार दे विच विचर सकन। उस समय सासों परमेश्वर ने आख्या माफ करना ठीक,
उस मौके आखे मैनू उपदेश दिओ। गुरु उपदेश दिंदा सिख नूं माफ करना गुरु की संगत इहनूं। उस मौके उथों उपदेश होया जो जपजी साहब ने शुरू जी श्री अखंड पाठ दे गुरु ग्रंथ साहब के शुरू जी आउंदा आख्या बोलो नानक एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अयूनी सरवण गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी भी सच एक उपदेश लेके माफ करना गुरु जी निरंकार दे पासों। सतनाम 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 जी 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 सतनाम सतनाम गुरु की संगत तीसरे दिन बाद आए माफ करना वाले दी नजर पई गुरु बाबा जी जिन्होंने समझदा सी वहीं दे विच डुब गए सत्संग काली करी अगे वधे जाके गुरु बाबा जी के चरणों ते नमस्कार की। महाराज तुसीं कित्थे गए सी 2 दिन मेरी ही तां जिंद तुहाडे दर्शन नूं तरसदी सी। माफ करना गुरु बाबे ने आख्या बाले लियाओ वस्त्र पहनिए ते तैयार होके चलिए अगे बेबे नानकी इंतजार करती होगी। माफ करना आख्या रही गल साडी जिथे निरंकार लै गया उत्थे चले गए जो हुक्म होया असीं वापस आ गए। क्यों गुरु की संगत खैर जो गुरु जी घर पुजे ते बेबे नानकी जी दे पैरी नमस्कार की हथ ला के नमस्कार की। बेबे नानकी ने आख्या वीर जी तुसीं ये की कीता है माफ करना तुसीं तां मैं तुहानूं निरंकार मनदी हां परमेश्वर मनदी हां। गुरु बाबे ने आख्या भैन बेबे जी तुसीं मेरे तों वड्डे हो
माफ करना जिहड़े धीआं भैणां दी इज्जत नहीं करते, मन च विचार के देखो। आख्या बेबे जी तुसीं वड्डे हो उम्र विच। बेबे नानकी काफ़ी वड्डी सी उम्र करके गुरु नानक साहब तो इत्थे घर गुरु की संगत गुरु नानक जी इत्थों सत्संग जाके अमृत घाट च शमशान घाट च कब्रस्तान कह लो जिथे मुसलमान लोग हैं जिहड़े मरदे दफनाउंदे हैं, उत्थे सारा दिन बैठे रहते हैं। लोग कहते नानक नूं पता नहीं की हो गया, कोई कहता भूत चंबड़ गया होना। जिथे बाणी प्रचारण की कोई आखे भूत ना कोई कहे बताला, कोई आखे आदमी कोई नानक विचार। तो कहते पानी भर गया होना, भूत चंबड़ गए, पानी रह गया है ना दुध ना। तो सारा खैर सार संगत जी खैर उत्थे बैठे गुरु साहब कही जाते हैं ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, ना हिंदू ना मुसलमान, ना कोई हिंदू ना मुसलमान। खैर गल करते करते एक गल मोदी खान दे नवाब कोल भी पहुंची। असल विच ओनू सोझी हो गई सी कि माफ करना गुरु की संगत की माफ करना जो ओदे मोदी खाने दे नवाब दे मोदी खाने में जो 750 रुपये बचत निकली, 750 रुपये बचत निकली, तो उन्होंने इस गल का ज्ञान हो गया सी कि ये गल कोई छोटी मोटी गल नहीं है। तो साध संगत जी काजी बिटिया और मुसलमान शराह बड़े पक्के हैं। खैर गुरु की संगत तो उत्थे जाके गुरु नानक साहब के कोल गया। खैर काजी ना लेके माफ करना गुरु की संगत, उत्थों माफ करना गुरु की संगत गुरु नानक पातशाह जी नूं काजी ने कहा ना उनके बेचारे हिंदू बेचारे टैक्स दीजिए करा दे मारे, पर मुसलमानों का तो चक्रवर्ती राज है। हिंदुस्तान दे विच मुसलमानों के राज की तूती बोलती है, मुसलमानों का सिक्का चलता है। मुसलमान किवें नहीं, गुरु जी कह लगे हिंदू वो है जिहड़े चंगे कर्म करता, मुसलमान वो है जिहदा दिल मूंह वर्गा होवे। मुसलमान मूंह दिल होवे, अंतर की मैल दिल ते धोवे। कहते असीं फिर राम ते खुदा विच कोई फर्क नहीं समझते। और नवाब के काजी कहते हैं प्रोफेसर नवाजी करें ये फर्क नहीं समझते। तो गुरु साहब कहते चल माफ करना गुरु की संगत आप नवाज कर लेने मिलके। तो साध संगत जी गुरु जी मस्जिद चले जाते हैं उन्होंने नाल। इधर बेबे नानकी नूं किसी ने आख्या भैन ये तो काम बड़ा खराब हो गया। ओह की माफ करना पैर नानकी तेरा वीर होण मुसलमान चलिया। पैर नानकी तेरा वीर होण मुसलमान चलिया। हाड़ा आ गया, लोड़ आ गया, माफ करना तेरा वीर मुसलमान होन चलिया। बेबे नानकी जानती सी इहदे विच भी मेरे वीर का कोई चोज होना। बचपन समय तो बेबे नानकी एक इनू सोची सी, दूजी राय बलार चौधरी नूं सोची सी, और तीसरी सोची गुरु नानक जी की किसी नूं नहीं आई। भावें समा पाके फिर बाबा लैणा जी वर्गे गुरु के सिख आए जो अंत नूं गुरु नानक की सेवा करके दूजा गुरु नानक बन गए। एक बारी कह दे गुरु अंगद देव महाराज बन गए। जो मस्जिद गए तो कहते चलो नवाब करो, कहते करो जी। तुम भी नवाज कर लगे जिवें बैठे गुरुद्वारे होने मन साडा खब्बे सज्जे, मन तक होर बैठा होंदा गुरुद्वारे तां बैठे जी मन साडा गुरु घर हो गए। एक बारी कह दे
बैठे कीर्तन जुने मन चार के दौड़े फिरता अपने कम्मा कारां विच ते साध संगत जी वो फिर उत्थे टकाओ की बनना। खैर एक पासे काजी बैठा है, एक पासे नवाब बैठा है, गुरु नानक साहब बैठे हैं ते नमाज लगे करना, नमाज कर लगे ते साध संगत जी गुरु नानक साहब हसी जाते हैं, कभी हसते हैं, चुप कर जाते हैं, फिर हसी जाते हैं। ते ਉਹ ਜਿਹੜੀ नवाब ਦੀ ਕਾਜੀ ਦੀ ਘੋੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਘੋੜੀ ਬੱਧੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੋਇਆ ਸੀ, ਖੱਡਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਠਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਸੀ ਜੇ ਘੋੜੀ ਸੂ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਸ਼ੀਰਾ ਹੈ ਉਹ ਖੱਡੇ 'ਚ ਟੋਏ 'ਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਬ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਸਨ ਉਹਦਾ ਮਨ ਨਾਲ ਘੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਘੋੜੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਉੱਥੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਰ ਤਾੜੀਆਂ ਮਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਮਾਜ਼ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਹਦੇ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਤਾਂ ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਨਮਾਜ਼ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, तेरा मन तो घोड़ी दे विच सीगी, घोड़ी सू गई, वो शेरा टोए दे विच डिग के मर जाएगा। दसो माफ करना गुरु की मैं की देना तुझे घोड़ियां दी ते वछेरियां दी नमाज कीती है। एक मेरी क्या दे घोड़ियां ते वछेरियां नमाज कीती, मैं अपना नमाज किदे नाल करदा, तुसीं कहंदे साडे नाल माफ करना गुरु की संगत साध संगत दी नमाज मैं की देना करता। उन्हें फिर गुरु नानक जी ने बेनती की भी वो नमाज किवें हुंदी है। गुरु बाबा जी ने कहा उस समय उपदेश दिता नमाज वो हुंदी है जो नमाज दे विच पूरा मन टिकिया होवे, नमाज करन विच ते उस पसों के प्रभु की उस्तत करो संत मीत जिवें पंजवें गुरु नानक गुरु अर्जन देव मर फरमाउंदे ने प्रभु की उस्तत करो संत मीत सावधान एकाग्र जीत। जस करो वाहिगुरु दा प्यारियो चित नूं एकाग्र करके, करो वाहिगुरु दा प्यारे चित नूं एकाग्र करके, करो वाहिगुरु दा प्यारियो चित नूं एकाग्र करके, जस करो वाहिगुरु दा प्यारियो चित नूं एकाग्र करके, करो वाहिगुरु दा प्यारियो चित नूं एकाग्र जप करो वाहिगुरु दा प्यारियो चित नूं एकाग्र, जप करो वाहिगुरु दा प्यारियो चित नूं एकाग्र करके, करो वाहिगुरु दा प्यारियो चित नूं एकाग्र करके, करो वाहिगुरु दा प्यारियो चित नूं एकाग्र करके, जप करो वाहिगुरु दा प्यारियो चित नूं एकाग्र करके, जप करो वाहिगुरु दा प्यारियो चित नूं एकाग्र, तुम एकाग्र करके प्यारियो, तुम एकाग्र करके प्यारियो, एकाग्र करके प्यारियो, एकाग्र करके प्यारियो, एकाग्र करके प्यारियो, तुम एकाग्र करके प्यारियो, एकाग्र करके प्यारियो। प्यारे
करो वाहिगुरु दा प्यारे हो 14 साल गुरु नानक जी सुल्तानपुर की धरती ते रहे। एक बारी कह दे वैरू जिथे गुरुद्वारा बेर साहब बनिया हुआ लोग माफ करना उत्थे दे लोग दसते हैं जो लंगर लाउण गए कहते जिस दिन वो बेर अजे भी खड़ा है बेरी अजे भी खड़ी है जिसके नाम से गुरु घर बेर साहब बनिया हुआ जदों हरमंदर साहब के उत्ते अटैक होया उस बेर दे विच साधु दसते हैं लोग कहते लहू दियां धार बह तुरीआं माफ करना कई ने कहा भी एक ही कत हो गया माफ करना खबरे बेर दे विचों पानी इहो जिहा निकलिया लाल रंग का खैर डॉक्टरां नूं बुलाया गया डॉक्टर ने चैकअप किया कहन लगे ये आम पानी नहीं है ये तो माफ करना बंदे दे ब्लड वर्गा खून है और थले गुरु बाबे ने माफ करना गुरु की संगत रोडां दी विछाई करनी अभी तो अजकल बैडां ते नहीं बैठ सकते गद्दियां ते नहीं बैठ सकते माफ करना गुरु की संगत पहले बाबे पाया बख्शदा सारे पढ़ो पहले बाबे पाया बख्शदा पिछों दे फिर घाल कमाई अक रेत आहार कर अक रेत आहार कर अक भी खाता माफ करना गुरु की संगत अक्का दी डोडियां खादियां अक रेत आहार कर रोड़ा दी गुरु करी विछाई भारी करी तपस्या बड़े भाग हास्यों बने आई सारे पढ़ो भारी करी तपस्या सतगुरु भारी करी तपस्या सतगुरु गुरु नानक साहब की शादी माफ करना मूले खतरी दी बेटी माता सुलखणी जिसनूं कहा जाता उसदे नाल हुई सी बेबे नानकी दे पिंड तो ही गुरु नानक दी बरात जंज सासंग चल के बटाले पुजी सी बटाला गुरदासपुर दे नेड़े पैंदा उत्थे दी पहला तहसील हुंदी सी शहर अजकल दे डिस्ट्रिक्ट भी बन गया माफ करना गुरु की संगत इतों ही जंज चढ़ी सी लोग कहते हैं अज जो बाबे नानक का विआह होंदा ना बाबे नानक का जिस दिन विआह होंदा उस तरह सुल्तानपुर तो लेके लोगों ने ये रस्ता करीब करीब 100 किलोमीटर तो उत्ते पैंदा लोगों ने इन्ने लंगर लाए होंदे ने एक बारी घरे वैरू किते पकौड़ियां दे लंगर किते जलेबियां दे लंगर किते मठियाइयां दे लंगर माफ करना गुरु की संगत भावना की है कि अज ये बाबे नानक का विआह हो रहा है एक बारी कह दे वैरू ते कई लोग कहते हैं जो बाबे नानक की बरात जानी सी बाबा जी ने एक लूला देखिया पानी पड़ता सी पिया पूरी रत नहीं सी कोई कुछ नहीं सी कोई किसी की बाह नहीं थी कोई इहो जे बंदे बाबे नानक की जो जंज चढ़ी तो इहो जे बंदे गए अक्सर साढ़े गुरु घर ग्रंथी सिंह ऐसा ही दसते हैं एक बारी कहते वैरू और जो बाबे नानक की जंज चढ़ी
राय बलाल चौधरी वर्गे गुरु नानक साहब के सेवक और जी उस जमाने च खालसा जी 25,000 एकड़ जमीन सी, अज दे किसी चीफ मिनिस्टर के नालों घट नहीं सी। राय बलाल चौधरी वर्गे माफ करना गुरु की संगत गुरु नानक दी बराते गए, माफ करना गुरु की संगत कर उथे जेड़ा मूला खतरी सी वेख के सरवर के घोड़ा हो गया, मार के साधु लै गए, कोई संत लै गए, बरात च नाम जपण वालियां रूहां नूं लै गए। और कह लगा मेरी ते ना नाकी वड़ दी, माफ करना गुरु की संगत मेरा छड़े कख नहीं है। तो साध संगत जी खैर उन्होंने प्रोग्राम बनाया। अजकल तो जमाना बदल गया, अगे पिंडा असीं जानते हैं कि जदों बरातां जांदियां सन ते माफ करना मंजे ढाए जाते सन, अजकल कुर्सियां ढाइयां ते मैरिज प्लेस आ गई। ते माफ करना गुरु की संगत बाबे नानक नूं एक कच्ची कंध जिहड़ी अज भी शीशियां नाल जड़ी हुई है, एक बारी कह दे उत्थे बाबा नानक जी बैठे ने। ते जदों उत्थे बैठे ने साध संगत जी ते इन्हें मूले खतरी ने कोई लड़कियां नूं आख्या, बीबियां नूं आख्या भी इंज करो, जदों ये नानक इत्थे बैठेगा ना ते कंध नूं धक्का मार के ते कंध नूं माफ करना नानक दे उत्ते सुट दिओ, माफ करना मर जाएगा। इन्हें मेरी नक दी कुल दी नक वड़ दी, इहो जे जवाई भाई दी की लोड़ है। माफ करना गुरु की संग बाबा जी जदों कच्ची कंध दे कोल बैठे, एक सियाणी बजुर्ग माई ने आख्या काका इत्थे मूले खतरी दी नजर भी कोई बदल गई है तो कुछ परिवार की नजर बदल गई है, तेन मारना चाहते ने। इंज कर एक कंध जी जदों तू कंध के नेड़े बहते गए हैं, एक पासे हो जाए ना कंध सुट के तेनों मार देना। गुरु नानक पातशाह जी कह लगे उस माई नूं, कहते माई तो घबराना घबराना, माफ करना गुरु की संगत। ये कंध ने की माफ करना डिगना है। ओदियां गल्लां सुन के बाबे ने सुनाई एक सच कहानी, ये ना टठनी ना ये टठनी, ये कंध 4 युग तक रहूगी मेरे ब्याह की निशानी। माफ करना बड़ा जोर लाया, कंध टठी नहीं, टस तो मस नहीं हुई। गुरु की संगत अपने गुरुओं के जीवन पढ़िया करो। एक बारी कह दे हुण दर्शन करने टाइम नहीं लगा, गोडे कोई डोलते सी। पहली बार है कि हमारी हजूरी जाके नमस्कार करनी शुरू की, यानी ते दूरों ही शीश झुका लेंदे सन। उत्थे जिथे सुल्तानपुर गए सी, उत्थे गुरुद्वारा सेरा साहब है। एक बारी कहो वाहिगुरू। मनमती जिहड़े कहंदे रब नहीं हैगा, परमेश्वर नहीं हैगा, ते ओ गुरुद्वारा सेरा साहब ने किहन पुछया, गुरुद्वारा सेरा साहब इत्थे ये सेरा साहब गुरु नानक दे नां ते बने? कहंदे नहीं, कहते इत्थे गुरु हरगोबिंद समर्थ 6वें पातशाह का विआह है। एक बारी कह दे जो फेरे होने सन गुरु हरगोबिंद समर्थ दे, जिवें महाराज पिछे जगह जी फेरे 4 फेरे होंदे ने, परिक्रमा करनी पैंदी, ते ओह कंध सी जिहड़ी बड़ी नेड़े सी। सारे को धन गुरु हरगोबिंद महाराज, धन गुरु हरगोबिंद महाराज जी। माफ करना कहते ने महाराज नूं लगे कहंदी इत्थे परिक्रमा नहीं की जानी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी, ते तुसीं इंज करो भी इस कंध नूं जद अगे हो जाओ ते जां कंध ढा के पिछे दोबारा पिछे कर दीए। गुरु हरगोबिंद महाराज कंध नूं पिछे हटाउण दी की लोड़ है? ते ये माफ करना जिथे महाराज प्रकाश किया है, इस स्टेज नूं भी अगे करन दी लोड़ नहीं है। कहण लगे भी इंज करो जी, फेरे होणगे ना आनंद करते होंगे, एक कंध अपने आप पिछे हो जाएगी। वो सत्संग जी तुसीं दर्शन करावांगे तुहानूं, ओहड़ी कंध ऐ सीधी जांदी ना, ऐ कंध सीधी जांदी, ते जदों फेरे लैने सन ते उस कंध ना वो कंध पिछे हट गई। ते अज भी वो कंध वैसे सीधी हुंदी, मकान की छत माफ करा के बिल्डिंग की छत सीधी हुंदी है, अज भी वो कंध है जिहड़ी
वो सीधी नहीं हैगी, वो माफ करना ਉਹਦੇ ਚ ਕੁੱਬ ਪਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਚ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਇਹ ਐ ਕਰਕੇ ਐ ਨਾ ਉਹ ਕੰਧ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਦਸੀਏ ਕੌਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤੂੰ ਨੂਰ ਦਾ ਫੁੱਟਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਏ, ਤੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਦੀ ਰੇਖਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਰੇ ਅੜ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਦੀ ਦੇ ਫੇਰੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਦੇ ਵੈਰ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਆਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੈ ਮਾਂ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਗੱਲ 'ਚ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਜੈ ਮਾਲੇ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਕਰਾਉਂਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹੋ ਵੈਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਦੀ ਦੇ ਫੇਰੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ ਅੜ ਗਏ ਜੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਫੇਰੇ ਲੈਣੇ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇੰਝ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਚੌਕੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੌਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੌਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੱਦਾ ਵਗੈਰਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਕਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ 4 ਫੇਰੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆ ਸੱਚ ਜੁਗਾ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਫੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਪੀੜਾ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖੱਬੀ ਖਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਬਾਣਾ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਜਮਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਮਰ ਗਏ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜਾਈਏ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਜਾਈਏ, ਇੱਕ ਕੋਟਾ ਨਾਲ ਬੂੰਦੀ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਬਣਜਾਰੇ ਹਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹੋ ਬਣਜਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਣਜਾਰੇ ਹੋ, ਬਸ ਵੱਖਰ ਲਿਓ ਸੰਭਾਲ ਤੈਸੀ ਜੈਸੀ ਨਿਵੈ ਨਾਲ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇੰਨੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਲੂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕੇ। ਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਘਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਆਨੰਦ ਘਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਪੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਣਜਾਰਾ ਸਿੱਖ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਫਟ ਉਹਦਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਰੱਖਦਾ, ਵੱਖਰੇ ਰੱਖਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੱਟਣ ਕੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ? ਬਾਹਰੋਂ ਬਣਾ ਚਾਹਤੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ? ਕੱਢਦੇ ਦਸਵੰਧ? ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ। ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਮਾਰ ਰਹਾਂਗੇ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੈ? ਘਰ 'ਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭੁੱਲਿਆਂ ਵਿਆਪਣ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਐਸਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜੇ ਦਾਣੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਵੱਢਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦਾਣੇ ਤੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦਾਣੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰੇਮੀਓ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਘਟਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਦਾਣੇ ਤੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 5, 10, 20 ਕਿਲੋ 50 ਕਿਲੋ ਦਾਣੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਕਤ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਈ, ਬੜੇ ਰੰਗ ਵਰਤ ਗਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਕੀ ਗੱਲ, ਇਟਸ ਸ਼ੋਰ।
ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਜੇ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 100 ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਨਾ ਉਹ 5 ਰੁਪਏ ਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੁਣਨ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨਾਇਆ ਨਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਕੁਇੰਟਲ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਹੋਰ ਮੱਠੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 13 ਤਰੀਕ ਹੈ, 12 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੰਗਰ ਨਾ ਅਸੀਂ 13 ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ 14 ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੰਗਰ 'ਚ ਪਿਆ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ, ਇਹ ਤਿਆਰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਫੇਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰ ਕੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਇਸ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਠਿਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਭੇਜਾਂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਣੇ, ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਭੁੱਖ ਪਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਮੰਗਾ ਕੇ ਮੈਂ ਲਾਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਭਾਵਨਾ ਓਡਾ ਵੱਡਾ ਵੈਰੂ ਫੜ ਵੀ ਲਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਬੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ 4 ਸ਼ੇਰੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਲਏ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ 2 ਬੇਟੇ ਹੋਏ, ਵੱਡੇ ਦੇ ਨਾਂ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨੁਕਤਾ ਚੀਨੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾਸ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਫੜਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕੀੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੇੜ ਭਾਲਦੀ, ਤੇੜ ਜਿਹਨੂੰ ਤਰੇੜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇੜ ਭਾਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਕ ਹੈ ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਬੂਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ 2 ਬੇਟੇ ਹੋਏ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਸਾਥੀ ਸੀ। ਤੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਈ ਵਸਤਰ ਧੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਸਤਰ ਧੋਂਦੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀਆਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟੇ ਆ ਲੈ ਕੱਪੜਾ 3 ਸੁੱਕਣੇ ਪਾ ਕੇ ਆ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਸੁੱਕਣੇ। ਤਾਂ ਮਾਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮਰ ਜਾਣਿਆ ਫੇਰ ਬਰਾਇਆ, ਇਹ ਮਰ ਜਾਣਿਆ ਉਰਾਇਆ, ਮਰ ਜਾਣਿਆ ਉਰਾ ਆ। ਉਹ ਬਾਲਾ ਮਰਦਾਨਾ ਖੂਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਜਲ ਲੱਗੇ ਛਕਣ ਤੇ ਬਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਮਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਾਈ ਤੂੰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਵੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਰਬਾਬ ਉੱਤੇ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ, ਜਵਾਬ ਦਓਗੇ। ਆਲੇ ਬੜੇ ਭੈਣਕਾਰੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿਮਟੇ ਤੇ ਢੋਲਕੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਬਲਾ ਵੱਜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤਬਲਾ ਵੱਜਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਵਾਜਾ ਵੱਜਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ ਵੱਜਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਰਬਾਬ ਵੱਜੀ ਰਬਾਬ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਵਿਚਾਰ ਰਬਾਬ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਰਬਾਬ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਰਬਾਬ ਦੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ, ਉਹਦੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਪਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਰਬਾਬ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ, ਜਪਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਰਬਾਬ ਮਰਦਾਨੇ
ਕਰਦੇ ਸਨ, जंगल झूमन लग जाते सन, उड़ते पंछी दरख्तों से बह जाते सन। साध संगत जी खैर इधर ना जाइए, बाबा जी कहते माई इस बच्चे मर जाना कहती है, मर जाना कोई ना होंदा। माई ने खड़ा होकर लैके गया, जिवें इत्थे किसी दे कुड़ियां ज्यादा हो जान ते अखीर ते ना रख देंगे अक्को भी अक गया रब्बा हम ते बस कर, या ना रख देंगे रजी रब्बा रज गया हम ते बस कर। ते माई ने आख्या महाराज की दसा, ये तो पहला 7 बच्चे हुए ने, 7 दे 7 रब नूं प्यारे हो गए ने, ते हुण ना की रखना कोई 9 साल का, कोई 10 साल का, 8 साल का, कोई 11 साल का, इस तो बाद किसी की उम्र नहीं हुई। आख्या फिर जो 8वें बच्चे ने जन्म लिया, ऐसे बच्चे ने मैं सोचा ने मारते जाना ही है, एदा ना माफ करना की रखना, एक बारी कह दे जद ने मारी जाना ते एदा ना की रखना, इस करके मैं मर जाना कहदियां ने, मर जाना। गुरु बाबा जी कहते माता माई इंज कर ये बच्चा तू सानू दे दे। आख्या महाराज एदा की करोगे, इंज मर जाना। मारे कहते माई इंज कर तेरा ये बच्चा मरेगा नहीं, ये बच्चा मरेगा नहीं, जिथे साडा ना रहेगा उथे एदा ना रहेगा। बाबा जी ने आख्या माता ये मर जाना नहीं, जजे की थां ते गुरु नानक साहब ने दद्दा लाता। आख्या माता मरदा ना, सारे पढ़ो मरदा ना, मरदा ना, ना मरदा ना मरदा, ये मरदाना है। माफ करना गुरु की संगत। इधरों बाबा जी ने आख्या बाले मरदाने ना लेके ते आख्या बाले मरदाने माफ करना। बैठा बाबा बैठा ध्यान था, गुरु नानक साहब जी समाधि लाई, तब दा संसार तक गया, दुनिया त्रास कर रही है। ते गुरु बाबे ने आख्या संसार से बाजार भी निकलना है। उस मौके गुरु की संग जो चलना सी, आख्या जा मरदानिया वो पिंड नेड़े ही है जिथों रबाब मंगवाई सी मरदाने के कोलों, कहते जा मरदानिया उत्थे बेड़ी रहिंदा, कारीगर रहिंदा, रबाबा बनाउंदा, रबाबा बेचदा ते ओहदे कोलों रबाब लैके आया। मरदाने ने आख्या बाबा रबाब ते लै आवां पर पैसे नहीं है। आख्या बेबे नानकी पासों लै ली। माफ करना गुरु की संगत मरदाने दा बेबे नानकी पासों पैसे लैके ते फिर साध संगत जी रबाब लैके आना। गुरु नानक पातशाह जी दा अज पहली उदासी 4 उदासियां कीतियां ने, पूर्व पश्चिम उत्तर उत्तर दक्षिण दक्षिण। जो पहली उदासी शुरू की तो माफ करना गुरु की संगत बेबे नानकी नूं पता लग गया मेरा भी चलिया हजूर दे घरों। माफ करना गुरु की संगत माता चूनी भी कहते सरकनी जी, उन्हें रोकिया जी बच्चे न्याणे ने ना जाओ, इनका कौन है। माफ करना गुरु की संगत। फिर बेबे नानकी की गल गुरु नानक साहब बड़ी मनते सन। माता चौनी ने पाप भरजाई ने गुरु नानक साहब की भैन नूं क्या, बेबे नानकी नूं क्या, आख्या नानक कब चलिया ते उन्होंने लोग तेरी मनते ने, और तो किसी की नहीं मनते। अगली विचार इस तो शुरू की जाएगी। इन्ने बचन प्रभा शब्द प्रवान करो। गुरु नानक का जस तुहानूं शुरू तो लैके लड़ीवार तक समझाया जा रहा है। कल नूं बाबे नानक का माफ करना गुरु की संगत पहली उदासी भरनी, पहली उदासी से निकलना ते बेबे नानकी का गुरु नानक साहब नूं रोकना, वर्जना, समझाना। वीर मेरी भरजाई की जवानी उम्र है, ये बच्चे हैं न्याणे ने, कर गुरु की संगत
अकल की विचार ये तो शुरू की जाएगी। अगला समा तुसीं भाई मनी सिंह पासों सरवण करो। समा गुरु घर आया करो, दौड़ दौड़ के आया करो। जिन्हें तुसीं गुरु घर दौड़ दौड़ के आओगे ना, गुरु नानक साहब भी तुहाडे काम उन्हें समझ लो दौड़ दौड़ के करनगे। एक बार कह दे एक पेंडा जाए चल सतगुर कोट पेंडा आगे हुए नीत है। जेड़ा गुरु एक कदम फुट के जाता है, गुरु लैन वास्ते अगों करोड़ा कदम पट के लैन वास्ते आंदा है। सुशासन सारे ही माई है, भाई है। थोड़े दिन की गल है, इतने कम नवे हुए ने। शासन किन्ने तुहानू कहना गुरु सेवा करया करो, पर फिर भी इस घड़ी उस दौर च गुजरे दुख पवाई है। होर भी एक दो खर्च ने, मैनू पता कि करने तो संगत नहीं ने ते पूरे हो जाने ने। बाकी तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ धन्नवाद। नगर कीर्तन दे विच सारिਆਂ ने वध तो वध माफ करना गुरु प्रसाद संगत जी, तुसीं हाज़री भरनी है ते कोई पिछे ना रह जाए। गुरु नानक आयो है, 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 गुरु नानक आयो, गुरु नानक आयो है। खत्री आ जाए, ब्राह्मण आ जाए, सूद आ जाए, बहस आ जाए, ऊंच आ जाए, नीचा नीच आ जाए, पन्नी आ जाए, पापी आ जाए, इत्थे सबना नूं जिंदगी दा राह मिलता है। इस घर विच कोई किसी ना वितकरा नहीं है। इत्थे सज्जन ठग वर्गे सज्जन बनते देखे ने। एक बार कह दे कौड़े राक्षस वर्गे बंदे तल तल के खाने वाले बंदियां नूं गुरु नानक ने संत बना दिता। एक बार कह दे भूमि चोर वर्गिया चोरां नूं माफ करना गुरमुख गुरसिख बना दिता। ये वो घर है जिथे जेड़ा भी आया मुसलमान है। हुई भुलों की माफी। अगला समा भाई मनी सिंह होरी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।